बहुत बहुत तेज आवाज आ रही है तुम्हारी, सुनाई नहीं दे रहा मुझे। आई थिंक बीच में आपका मीटिंग लीव हो गया था। हाँ, वो बार बार लाइट पता नहीं क्यों जा रही है। आज यहाँ पे ना बहुत बारिश हुई है। थर्ड क्वेश्चन कौन सा? थर्ड क्वेश्चन था लॉग एक्स। पुराने क्वेश्चन दिखाओ मुझे, और कौन से थे लास्ट क्लास में जो मैंने किए थे? नहीं है? अच्छा। साइन स्क्वायर एक्स आई हैव डन। डिड वी डू साइन क्यूब एक्स? नहीं किया था ना। ओके। एक्स स्क्वायर किया था। ठीक है। साइन क्यूब एक्स करेंगे। दिस इज लॉग एक्स। शी इज डिफरेंशिएटिंग लॉग एक्स. So f of x plus h is log of x plus h. Now the formula. Then she's applying property of log. Log a minus log b is log a by b. Log divide. Log division को difference में convert करता है. Log product को sum में convert करता है. Log power को multiplication में convert करता है. Now she'll. This would be 1 plus h by x. Now she will be using limit of logs को side में लिख दो, कौन सी limit use करी हो तुम? Limit h tends to 0, log 1 plus h by h is always 1. She'll be using this limit. So since there we have x in the denominator, she has multiplied. Over here, we had 1 plus h by x, so she multiplied by x divided by x. So derivative of log x is 1 by x. Now remember this. But this would be there only and only if it is to the base e. Whenever you have log x to the base e, derivative would be 1 by x. But in case it's not to the base e, then you have the base changing formula. Log a to the base b is always log a to the base c by log b to the base c. मतलब हमें बेस को चेंज करना पड़ेगा टू द ई में. हम्म. सारे कर लो, लॉग की तो प्रॉपर्टी सारी याद होनी चाहिए. हाँ. ये तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला. एनी बेस, सी कुड बी एनी बेस. सी कुड बी ई ऑल्सो, सी कुड बी 10 ऑल्सो. First principle, see, in the entrance, there'll be no first principle question, but in 11th examination, you come across one question for sure that differentiate using first principle. Next question, which you have to differentiate is sine cube x using first principle. And I think we have done sine x squared. All right. If this is the last question, then we'll move on to differentiation. Differentiate sine cube x using first principle. नहीं नहीं, साइन वेरेवर यू हैव एक्स रिप्लेस इट बाय एक्स प्लस एच. एफ ऑफ एक्स प्लस एच चाहिए ना तुम्हें? एफ ऑफ एक्स है तुम्हारा, ये तो तुम कौन सा कर रही हो? हम्म. नाउ यू कैन अप्लाई द आइडेंटिटी ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब. ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी. ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर.
Now, when you put the limit, the second bracket will not become 0. So we need to simplify only that part of the question which becomes 0 after substitution of limit. So the first bracket will become 0 if I substitute the limit, and this will become 0. This is the problematic part. So over here you apply sin c minus sin d. फर्स्ट ब्रैकेट में sin c माइनस sin d अप्लाई करो. Apply sin c minus sin d in the first bracket. I got something. हम्म मेरा कुछ तो आ गया. बताओ क्या आंसर है. 4 sin square x into cos x. नहीं, 4 नहीं आएगा, कुछ गड़बड़ की है. 3 आएगा. It will be 3. So sin c minus sin d, you all know क्या होता है. Sin c minus sin d is 2 cos c plus d by 2, that is 2x plus h whole divided by 2 into sin c minus d by 2, which is sin h by 2. And हाँ, this गलत आइडेंटिटी लगा दी. hmm आ गया 3, मैंने 2 sin square x ले लिया. हाँ वो ये आ रहा है. ठीक है. अब प्रॉब्लम ये h/2 है ना यहाँ पे. सो वी वांट h/2 इन द डिनोमिनेटर, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो. आफ्टर पुटिंग द लिमिट दिस विल बिकम 1. ये 2 से 2 कट जाएगा. h को 0 डाला. cos x sin square x sin square x sin square x, that is 3 sin square x. So derivative of sin x whole cube is this. नहीं, ये तुम अब डायरेक्ट कर पाओगे. आई टेल यू व्हाट इज चेन रूल. ठीक है. नहीं नहीं, अब नाउ विल डिफरेंट वट एवर फॉर्मूला वी हैव डिराइव्ड यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, हम उसको डायरेक्टली यूज करेंगे डिफरेंशिएट करने में. वी वोंट बी यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल. सो साइन एक्स होल क्यूब का डेरिवेटिव 3 cos x sin स्क्वायर x आ रहा है. ये हमने किया है फर्स्ट प्रिंसिपल से. हाउ डू वी सॉल्व इट डायरेक्टली नाउ, विल लर्न दैट. नंदिनी लिख लिया. आर्यमन हो गया. Yes, Yes. sir. ओके. So let's write the formulas we have so far derived using first principle. एक के बाद हाँ, तो लेट्स लिस्ट डाउन 4 formulas each. 4 तुम लिखना, 4 दृष्टि लिखेगी, 4 तुम लिखोगे. ठीक है. डेरिवेटिव जो हमने अभी सीखे थे ना, वो लिखना है. राइट फ्रॉम द x टू द पावर n sin x cos x tan x sec x. या तुम लोग लिस्ट डाउन खुद से कर लो. एवरीवन आओ. बिना देखे, मोबाइल से देखना नहीं है. तो फायदा, तो फिर फायदा क्या हुआ. ये नहीं करना है. ये डेरिवेटिव, ये तो लिमिट्स हैं. डेरिवेटिव, ये तो लिमिट का फॉर्मूला है. तो लिमिट डेराइव किया ना वो, दैट इज व्हाट. ये सारे लिख दूँ please? नहीं, अब तुम बैठ जाओ, मैं लिख देता हूँ. बोलो. दिव्या दिव्या टेल मी वन फॉर्मूला. d by dx of x to the power n. Right, the very first formula we derived is this nxn minus 1. Aryaman, tell me one result. So d by dx of sin x is cos x. All right. Nandini. नंदिनी Yes, का sir. बोलो, एक रिजल्ट बताओ डेरिवेटिव का. Um, d by dx भूल of cos x minus sin x. दृष्टि. राइट. जो सारे C वाले होते हैं वो माइनस में होते हैं ना. हाँ, अद्विका बोलो. हाँ, लॉग लिख दो. लॉग एक्स का डेरिवेटिव लॉग 1 बाई एक्स होता है.
वो लिमिट था, वो अलग था। 1। वो तो इसी से आ रहा है, कुछ और बता दो। सेक एक्स का बता दो, कॉट एक्स का बता दो। हाँ वो हो सकता है जो अभी किया था हमने। ठीक है, राइट। तो ये सारे तुम एक जगह लिख लो फॉर्मूले जो भी तुमने हमने अब तक किए हैं। नाउ विल बी यूजिंग दीज डायरेक्टली। ए टू द पावर एक्स का हमने किया था अभी, ए टू द पावर एक्स लॉग ए डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, याद है किसी को? हम्म, सेक एक्स का डेरिवेटिव, सेक एक्स टैन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ cosec x was minus cosec कोसेक x cot x. So these results, ये तो बिल्कुल हमें पता होने चाहिए, ठीक है। अब हम डायरेक्टली ये रिजल्ट यूज करेंगे। हाँ अभी तो इतना ही है, बाकी इनवर्स वाले भी नहीं कर रहे। देन वी हैव प्रोडक्ट रूल, डिविजन रूल एंड चेन रूल। मुश्किल तो कुछ भी नहीं है। समटाइम्स यू कम अक्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। ठीक है, लिख लो एक बार। यहाँ मत लिखो घिच पिच में, ये तो बिल्कुल नोटबुक के एंड में लिख लो, या कोई खाली जगह है बिल्कुल वहां लिखो। विल बी यूजिंग अगेन एंड अगेन। u and v आर टू फंक्शंस जो मल्टीप्लाइड हैं और हमें उसका डेरिवेटिव निकालना है। हम्म तो दिस वुड बी v one function as it is into derivative of the second function, and then first function as it is derivative of the second function. So this is called product rule. If two functions are multiplied and you want to differentiate it, this is how you go about it. For example, suppose you want to differentiate e to the power x into sin x. So one function you can take as u, another as v. कई बार डेरिवेटिव को ऐसे भी लिखा जाता है, ई एक्स लिख दिया और साइन एक्स डैश, साइन एक्स एज इट इज ई टू द पावर एक्स डैश। डैश का मतलब सेम एज, यू सी, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज सेम एज साइन एक्स डैश, मतलब वी आर डिफरेंशिएटिंग इट। तो rather than writing पूरा डी बाई डी एक्स, यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो। तो वी हैव अप्लाइड प्रोडक्ट रूल। अब e टू द पावर x एज इट इज, sin x का डेरिवेटिव यहां से देखो, मिल रहा है तुम्हें sin x का डेरिवेटिव cos x प्लस sin x, और e टू द पावर x का, इफ यू वांट यू कैन सिंप्लीफाई इट फर्दर, कॉमन ले लो, cos x प्लस sin x, ठीक है। सो दिस इज द प्रोडक्ट रूल।
So this is the product rule. कई बार you come across questions which involve more than 3 functions also. Yes. So no worries. हम भी किसी से कम नहीं, है ना? So if there are 3 functions u, v, w, the rule is very simple. Differentiate one function. हाँ, कहाँ पे? नहीं, dash. Dash also means, see, derivative or dash means the same thing. So whichever way you want to write it, because writing dash becomes easier for us. So here you write one VW का product into du by dx. फिर then next two functions कर लो, uw and then v का derivative, and then uv and then derivative of the third function. The idea is कि whenever there's product of many functions, what you do is एक को differentiate करना है, बाकी को as it is रखना है, और फिर plus and so on. Yeah. ठीक है? अभी और लिख लिया ना ये? Next, we have division rule also. That is, you come across a function where you have u by v. तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑर्डर का ध्यान रखना पड़ेगा, because there's a negative sign in the numerator. The formula is this. पहले हम न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, डिनोमिनेटर as it is, derivative of numerator, then minus sign, numerator as it is, derivative of the denominator. So that's called quotient rule or division rule. This is quotient rule or division rule. V square, denominator का square, और पहले we have to differentiate the numerator. What if I write it as v to the power -1 and then I use product? Yeah, if you want to do that way, you can do that way also. उसी से तो आता है फॉर्मूला. तो पहले प्रोडक्ट लग जाएगा और डिवीजन भी लगेगा, प्रोडक्ट भी लगेगा. मान लो सपोज इन द न्यूमरेटर यू हैव प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस u w by v. So while differentiating the numerator, because this time the numerator is u and w, so यहाँ पे वापस नेक्स्ट टाइम मेरे को प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा. So when I differentiate this, I need to apply product rule here. D by dx, suppose we have log x divided by cos x. We want to differentiate this. So we can use division rule. Product rule से भी हो सकता है, because मैं चाहूँ तो 1 by cos को मैं I can write sec also. So you can avoid division rule, you can directly do by product rule also. But इसको हम question rule से कर लेते हैं. Denominator का whole square, denominator as it is, derivative of the numerator, minus sign, numerator into derivative of this. तो cos x as it is, log x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 by x. cos का माइनस साइन x, तो माइनस माइनस प्लस, एंड cos x का होल स्क्वायर. You if you want, you can leave it like this, or you can simplify it further. या तो अलग अलग डिवाइड कर दो, you can leave it like this also.
बस ये आंसर आ गया, थैंक यू वेरी मच कर दो उसके बाद। क्या हुआ दीक्षा, क्या हो रहा है फिजिक्स में आजकल? ग्रेविटेशन ही चल रहा है स्कूल में। चलो ठीक है, वो तो हो चुका है हमारा। हमने अब सैटेलाइट बचा था आई हाँ थिंक। हाँ, सैटेलाइट बचे, केपलर्स लॉ बचे ना हमारे। फ्राइडे करेंगे अब तो, कल क्लास है नहीं। चेन रूल, ये थोड़ा सा, दशहरा की छुट्टी है ना संडे, संडे नहीं थर्सडे, थर्सडे इज नो क्लास। सुबह तो वैसे छुट्टी है तुम्हारी, आज भी छुट्टी है, 7:30 के बाद है क्लास हमारी। आज कितने बजे क्लास है यहाँ पे? उसका छुट्टी है, आज भी, कल भी, परसों भी। फ्राइडे भी नहीं है, सैटरडे क्लास है। चेन रूल, अब इसको समझते हैं ये क्या हो रहा है। सपोज आई आस्क यू टू डिफरेंशिएट साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है? तो अब जरा उस लिस्ट में तुम जरा देखो, उस लिस्ट में डू यू हैव साइन एक्स का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव, जो हमने अभी 10 फॉर्मूले की लिस्ट लिखी थी? नो। नो ना? लेकिन अगर मैं चाहूं, इसको फॉर ए मोमेंट आई जस्ट अज्यूम कि एक्स है, इसको अगर मैं एक्स मान लूं तो क्या होगा? एक्स 2x हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। तो अगर आई अज्यूम फॉर अ मोमेंट अपने दिमाग का कि मैंने साइन एक्स को एक्स मान लिया, ठीक है, इट हैज बिकम एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यू ऑलरेडी नो, क्या होता है एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव? 2x होता है ना, बट इट्स नॉट एक्स, इट इज साइन एक्स इनटू, द चेन रूल सेज दैट इनटू जिसको तुमने एक्स अज्यूम किया है उसको दोबारा मल्टीप्लाई करो और डिफरेंशिएट करो। सो दिस विल बी 2 साइन एक्स एंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, अगेन आंसर आ गया cos x। So this is nothing but chain rule. I'll explain you again. When you have a question where we don't have a direct formula for derivative, but by some assumption it become a standard formula. Because मैंने इसको x माना, it became x square. I know derivative x to the power n and xn minus 1. तो 2 into x, but ये x नहीं है तो sin x है, into sin x into whatever you assumed उसका derivative multiply करना है। तो दिस इज चेन रूल। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होल क्यूब तूने अभी अभी किया था, जस्ट नाउ यू हैव डन दिस क्वेश्चन, है ना? फर्स्ट प्रिंसिपल से किया था। अब आई डोंट हैव एनी फॉर्मूला फॉर साइन एक्स होल क्यूब, बट आई नो इफ आई अज्यूम दिस टू बी एक्स, इट विल बिकम एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है? एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3x² इंटू, जिसको मैंने एक्स माना है उसका दोबारा डेरिवेटिव। हाँ हाँ, तो 3x² तो लिख रहा हूँ। हाँ तो अब इसको मैंने एक्स माना था, इसका स्क्वायर हो गया और इसका डेरिवेटिव। अब जरा देखो क्या आंसर आ रहा है, 3 sin² x इंटू, cos x। दिस वॉज योर आंसर फर्स्ट प्रिंसिपल से। सो दिस इज कॉल्ड चेन रूल। मोर क्वेश्चंस चेन रूल के, लिख लो एक बार। जब तुम्हें डायरेक्ट 10 रिजल्ट से डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाता है तो नॉर्मल करना है, जैसे ये वाला है। डू यू हैव एनी रिजल्ट फॉर दिस, डायरेक्ट रिजल्ट? नहीं है ना, फिर क्या करोगे? मेक सम assumption so that this becomes one of those formulas.
तो नंदिनी की अजम्पशन करोगे ताकि वो फॉर्मूला बन जाए? किसको एक्स मानोगे ताकि इट इज अ डायरेक्ट फॉर्मूला? एक्स स्क्वायर को। तुम ऐसे मानोगे ही नहीं ना। कहाँ रखवाऊं इसको मैं? हाँ, हमें डेरिवेटिव साइन एक्स पता है ना, तो क्या हम एक्स स्क्वायर को फॉर अ मोमेंट एक्स मान सकते हैं? सो लेट्स अज्यूम दैट एक्स स्क्वायर इज एक्स। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है फिर? कॉस एक्स। लेकिन ये एक्स नहीं है तो एक्स स्क्वायर है। जिसको हमने अज्यूम किया उसका दोबारा से डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर दो। सो व्हाट इज डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर? सो योर आंसर इज 2x cos x स्क्वायर। यू कैन चेक आउट कि हमने जब किया था लास्ट क्लास में डेरिवेटिव साइन एक्स स्क्वायर किया हुआ है, क्या आंसर था? फर्स्ट प्रिंसिपल से हमने किया था, ये आंसर था। नहीं नहीं, दिल जस्ट से डिफरेंशिएट, देन यू डिसाइड योरसेल्फ तुम्हें कैसे करना है। डेरिवेटिव बहुत डिटेल में 12th में, तो हम इस साल भी काफ़ी डिटेल में करने वाले हैं। हालांकि वैसे तो कम आएगा स्कूल में तो, बट फिर भी। नाउ असाइनमेंट खोलो। अब हमें फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं करना है, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना है। एंड वेर एवर यू कैन सिंप्लीफाई क्वेश्चन, बिकॉज कई क्वेश्चन में देखने से लगेंगे प्रोडक्ट रूल से हो रहा है, डिवीजन रूल से हो रहा है, बट वैसे सिंप्लीफाई भी हो सकता है वो। पेज नंबर 8 पे रोमन में 2 लिखा हुआ है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 8 रोमन में 2 लिखा हुआ है। वाई और जेड नहीं करना है, बाकी सारे करने हैं पार्ट्स। मोबाइल कहाँ है? करो अब क्वेश्चंस करो। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है इफ इट्स इंडिपेंडेंट विदाउट एक्स। हाँ, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ऑल क्वेश्चन ऑल पार्ट्स। Aryaman, you must have had your second term. What's up? अभी तुम्हारे एग्जाम हो चुके हैं सेकंड टर्म वाले? हाँ। मार्क्स आ गए? नहीं। श्योर। मैथ्स में क्या क्या आ रहा था, आया था? मैथ्स में there was sets, relations, trigo, complex, straight lines, sequences. हाँ। Okay. And at the moment, which topic you are doing in the school? Right now we're going to start permutation and combination. Okay. So that I have already done. You can go through the videos, है ना? ठीक है। डिफरेंशिएट ए एक्स प्लस बी डायरेक्ट कर दो। तो क्यों करोगे प्रोडक्ट रूल? अगर टाइम पास करना है तो प्रोडक्ट रूल यूज कर लो, अदरवाइज डायरेक्ट हो जाएगा। ए एंड बी तो कांस्टेंट है, वेरिएबल कौन सा है? एक्स। सो ए इंटू डी एक्स बाई एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी, ये कट गया। बी कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 आ गया। थैंक यू वेरी मच। करने से पहले हो गया। अद्विका परेशान रहती है। बी तो कांस्टेंट है ना, उसका डेरिवेटिव 0। इंडिपेंड ए तो ए भी कांस्टेंट था, बट ए वाज मल्टीप्लाई विद द वेरिएबल। ए वाज इन द प्रोडक्ट विद द वेरिएबल ना। इज इट अप टू मी कि मुझे मल्टीप्लाई करके करना है या फिर डायरेक्टली करना है? यू कैन डायरेक्टली डू इट ऑल्सो। किस वाले में? हाँ, लाइक इट्स अप टू यू। ई if पार्ट में if you जैसे। have lot of time then you can multiply and do it. If you are short of time then product rule लगा लो, है ना? प्रोडक्ट रूल से जल्दी हो जाएगा ना। आंसर पीछे चेक कर लो, दिया हुआ है।
हम्म। ठीक है। वो जीरो हो जाएगा, लिख दो बट माइनस साइन, तो राइट प्लस या आज से चेक करते रहना, ठीक है। डायरेक्ट कर रही हूँ। मोशन में किया है ना सारा ये, उसमें सिर्फ विद रेस्पेक्ट टाइम करते थे। वो वहाँ उसमें टी होता था ना एक्स की जगह। क्या खाया है बॉस, लुक एट दिस। छुट्टियां हैं, स्कूल चल रहे हैं। Now D part में you can apply chain rule also, you can open it also a plus b का होल स्क्वायर से, बट अज्यूम करो अगर स्क्वायर की जगह टू द पावर 10 होता फिर क्या करते। नॉर्मली अगर सपोज मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर 10 होता, इन प्ले कैसे होता, टू द पावर 10 ओपन करोगे तुम फिर। अगर मान लो ये होता, अरे अरे पागल हो जाओगे तुम, अपने ही बाल नोच लोगे। बाइनोमियल करोगे 11 टर्म आएंगी, फिर 11 को डिफरेंशिएट करो, चेन रूल लगाओ। फॉर अ मोमेंट अज्यूम दिस टू बी एक्स, ठीक है। बन गया एक्स की पावर 10, बन गया एक्स की पावर 10 का डेरिवेटिव 10x टू द पावर 9, और जिसको तुमने x अज्यूम किया था उसका मल्टीप्लाई करके डेरिवेटिव हो गया, बात खत्म। तो यू हैव टू यूज दिस। इसको x मान लिया, x की पावर 10 हो गया, x की पावर 10 का डेरिवेटिव 10x 9 इंटू जिसको x माना उसका डेरिवेटिव, बिकॉज वाई टू ओपन यूजिंग बायनॉमियल। बस कुछ नहीं करना है। डिविजन रूल यू कैन यूज क्वेश्चन रूल, और एल्स इसमें क्वेश्चन की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे कुछ और इजी भी हो रहा है, देखो x कॉमन आके कट रहा है, कट रहा है ना।
एफ पार्ट में एक्स डिवाइड हो रहा है, एक्स कॉमन आके कट जाएगा। नंदिनी, विच क्वेश्चन, विच पार्ट? सर ये कर रही हूँ अभी, कौन सा? जो आपने अभी बोर्ड पे किया। आर्यमन, विच पार्ट? Sir, I'm doing the one on the board with the one you just did. अच्छा अच्छा। अगर log base 2 है and log x है with base 2, I can't hear you. Suppose you have log x written like this. It is assumed it is natural log to the base e only. Its derivative would be 1 by x.
But suppose you have something, some other base, they need to convert into the base E. We'll write like this. The base changing formula. So you convert it to the base E. And then when you differentiate this, 1 by log 2 is a constant. This is variable. And if you want, you can write it ulta also by using property of log. This way also. Sec square x. So why don't you write formulas on the इसको कवर भी नहीं चढ़ा रखा गिरा नहीं आ सके ये कुछ नहीं है इस साइन एक्स का कॉस एक्स ई की पावर एक्स ई की पावर एक्स कॉस एक्स का 1/x डन इजी एक्स ई टू द पावर एक्स हाँ यस बिकॉज टू द बेस ही है ना ये Well, log व्हाट in this step, जो second step है log e base पे x upon log e base पे 2. हाँ वी आर यूजिंग बेस चेंजिंग फॉर्मूला I got that, but फिर हमें quotient rule या product rule नहीं use करना पड़ेगा. see why you apply product rule or quotient rule because suppose you have x square divided by 5 would you use division rule अरे No. भाई 5 तो कांस्टेंट है ना बाहर निकाल दो उसको वो तो कांस्टेंट है तो दिस टर्म तो कांस्टेंट है log 2 तो कांस्टेंट है ना ये तो कांस्टेंट है ब्रिंग इट आउट देन यू लेफ्ट ओनली विद log x उसका डेरिवेटिव 1/x होता है x पे पावर हाफ कर लो ना उसको d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स हमेशा होता है 1/2 √x ऐसा क्यों होता है वो भी समझ लो d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का मतलब x की पावर हाफ so when you apply the formula it would be like this वो कन्वर्ट किया यहाँ पे देख लो ये याद कर लेना अब डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज 1/2 √x हम्म किसका ये किया तो है बेस चेंजिंग कर दिया ना सिंस द बेस वाज 2 वी नीड टू कन्वर्ट टू द बेस ई नेचुरल लॉग में कन्वर्ट कर दिया इसको उसको फिर बाहर निकाल दिया कांस्टेंट है ये log x का डेरिवेटिव 1/x हो गया फिर वापस बेस चेंजिंग फॉर्मूला लगा इसको पुर लिया है क्या हुआ नंदिनी तुम कहाँ पहुंच गई हाँ बेस चेंजिंग फॉर्मूला log x टू द बेस 2 को log x टू द बेस e में कन्वर्ट किया तो log x टू द बेस e log 2 टू द बेस e log 2 टू द बेस e कांस्टेंट है इसको 1 बाहर निकाल दिया इसको डिफरेंशिएट कर दिया 1/x हाँ e की वैल्यू तो कांस्टेंट है फिक्स्ड है ना कुछ भी थोड़ी हो सकती है
फिर 2 रेस्ट टू पावर एक्स का डेरिवेटिव 2 रेस्ट टू पावर एक्स माइनस 1 थोड़ी होगा। 2 रेस्ट टू पावर एक्स तो बताया था ना मैंने। 2 टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला a टू द पावर एक्स। a टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव इज a टू द पावर एक्स log a। So you have to use that only. 2 raised to power x would be 2 raised to power x log 2. Hmm. The I part, right? Hmm. How long do I have to go with the simplification? फिर वो चले ही जा रहे चले ही जा रहे। In the I part, you need to divide it individually. So it'll become very easy. You've been given y is equal to ax square plus bx plus c by under root x, right? So rather than using quotient rule, you divide the terms individually and answer. It'll be very simple. अलग अलग डिवाइड कर लो। सो अब क्या हो जाएगा, ये y इज इक्वल टू a x टू द पावर 3/2, दिस इज x टू द पावर हाफ sin to x power minus half. Now we differentiate it, so it'll be easier. अगर उसको रैशनलाइज करने डिवीजन रूल नहीं यूज नहीं करना पड़ता, एनीवेज आंसर से भी आना चाहिए। कॉस का माइनस साइन होगा ना। अच्छा तुमने उल्टा कर दिया, साइन माइनस कॉस हो गया तो प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो गया। आंसर क्या आ रहा है? सेम आंसर है वो। अगर तुम इसको रैशनलाइज करोगे 1 + sin x हो जाएगा साइन कॉस स्क्वायर एक्स, अलग अलग डिवाइड के वही आंसर आएगा। तुम वापस से क्वेश्चन कर रही हो, ठीक है। जी पार्ट ना, हाँ तो आगे करो ना फिर, सारे करने हैं एक्स तक। ये कहाँ किया? ऐसे थोड़ी होगा, गलत हो गया ना ये। पेन दो। ये थोड़ी ऊपर का ऊपर कर दिया, नीचे का नीचे कर दिया। मैंने अभी जो, नहीं नहीं, जो बोर्ड पे लिखा उसको देखो, या तो डिवीजन रूल यूज करोगी या इसको अलग अलग करोगे। ax² / प्लस bx/x प्लस c/x। सो x की पावर हाफ है ना, ये ऊपर जाके माइनस हाफ हो जाएगा, विल बिकम 3/2। ये x√x बच जाएगा, ये ऊपर x की पावर माइनस हाफ होगा। नाउ यू डिफरेंशिएट दिस।
कौन सा? ये देखो अब करता हूँ मैं. So dy by dx will be d by dx of ax to the power 3 by 2, d by dx bx to the power half, and d by dx cx to the power minus half. A constant है, so d by dx of x. B is a constant, d by dx of x की power half. C constant है, d by dx of x to the power minus half. Now you differentiate it using x to the power n वाला formula. ये तो हमें मालूम ही था, 1/2 √x होता है ये. That's your answer. हम्म. ठीक है. You can first open it and then differentiate. माइनस प्लस, ठीक है. हम्म. हाँ, वो भी कर सकती हो, अगर तुम करोगे तब भी आंसर आएगा. डिफरेंशिएट कर लोगे ना इंडिविजुअली, तब भी वही आएगा. करके इंडिविजुअली करके देख लो, इट विल बी द सेम आंसर. हम्म. कौन सा कर रही हो? नंदिनी, तुम कौन सा कर रही हो? यही वाला सर अभी खत्म किया लिखना. हाँ. विच वन? This one only, sir. I was just finishing. तुम्हारी आवाज इस पता नहीं लग पा रही, तुम सो रही हो क्या कर रही हो? No, sir. I'm in class हाँ. only. व्हाट? I'm in class only, sir. I'm not sleeping. कौन सा क्वेश्चन कर रही हो? यही वाला सर. ए? ए पार्ट? Yes, sir. ए तो हमने बहुत पहले कर लिया था सब. मतलब अभी तक ए पार्ट ही कर रही हो? No, 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 not A part, sir. This one, the one on the board.
तो बोल ही नहीं रही हो तो कुछ पता नहीं, सो रही है शायद। No, sir, I'm on a different device. That's why my voice isn't coming today. इसमें हाफ एंगल फॉर्मूला लगाओ। 1 - cos 2 थीटा इज 2 sin² थीटा। लिखो फॉर्मूला यहाँ पे। 1 - cos 2x इज 2 sin²x। 2x इक्वल्स टू 2 sin²x। तो 1 + cos 2x इज 2 cos²। हाँ बोलो। ये पार्ट में मैंने पहले सिंप्लीफाई तो कर लिया है, बट देन माय आंसर इज कमिंग कोसेक और कॉट के टर्म्स में पूरा। कौन सा वाला? के पार्ट। के में यू कैन यूज हाफ एंगल ना। I simplified it to 1 minus cos 2x upon sin 2x. अरे के पार्ट इज बेसिकली tan थीटा। Uh, Yeah? What? यस, के पार्ट इज tan थीटा, उसका डेरिवेटिव sec²थीटा। व्हाट इज के पार्ट, टेल मी, अंडर रूट। 1 minus cos 2x हम्म on 1 plus cos 2x. 1 + cos 2x होता है 2 cos²x। Oh. 1 - cos 2x इज 2 sin²x। 2 से 2 कट गया, अंडर रूट हट गया, y इज इक्वल tan x आ गया। सो dy/dx इज इक्वल टू। X square x. कितना सिंपल है, मेरे से भी हो गया। अरे तो सभी तो सब कुछ हो जाए मेरे से। तुम्हारे मोबाइल में लॉक लगा दूंगा मैं। हम्म को भी ओपन करो, a + b होल स्क्वायर से। a + b होल स्क्वायर, हाँ। बोर्ड पे कर दो क्वेश्चन, आओ। जो भी तुम्हारा मन कर रहा है। इसके बाद वाला कौन सा है? बाद, इसके बाद का। ये मैंने अभी कर दिया बोर्ड पे, लिख लो। ये के वो लिखा हुआ है सामने राइट में, लिख लो। करो। कौन सा? किसका साइन? साइन 2x का हो जाए cos 2x × 2। हाँ हाँ। इस पूरे mx को तुमने x मान लिया, इसको x माना, तो फिर दोबारा डेरिवेट कर दिया। हाँ, अब ये हो गया 1। ठीक है, ये हो गया साइन एक्स। 2 sin x/2 cos x/2 sin x होता है ना, डबल हाफ एंगल फॉर्मूला। आर्यमन क्या हुआ? सर इंटरनेट चला जाता। अच्छा, आई हैव डन आई एंड के पार्ट ऑन द बोर्ड, देख लो। ओके। हम्म। हम्म बिल्कुल सही कहा तुमने। साइन एक्स, वो साइन एक्स हो गया ना। 2 sin x/2 cos x/2 sin x होता है। लिखो साइन एक्स, और फिर उसको डिफरेंशिएट कर दो। साइन एक्स का cos x हो जाएगा। ठीक है।
इसको करो खुद से, ओपन कर लो ए प्लस बी होल स्क्वायर से, आइडेंटिटी लगाओ। First, you can open it using identity a plus b whole square. So this is 1, and that is sin x. Now, hmm? हाँ कॉट लिख दो, इजी हो जाएगा ना, अदरवाइज इसमें तो डिवीजन रूल लगाना पड़ेगा, डायरेक्ट वन टर्म में आ जाएगा। माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट देखो, इसमें क्या करोगे, अलग अलग डिवाइड, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम्हें डिवाइड करना है, आ जाओ। एम पार्ट, वही साइन कॉस में कॉट में कन्वर्ट किया ना तुमने, हो गया। यहाँ भी ये कर लो, सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, वो पहले वाला कॉट होगा, कॉस बाय साइन ना कॉट है। इस क्वेश्चन में इफ यू रैशनलाइज ना, तो मैं क्वेश्चन रूल नहीं लगाना पड़ेगा फिर, मतलब यहीं पे इसको 1 + sin x 1 - sin x कर दोगी, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, फिर अलग अलग डिवाइड कर दोगी। इससे भी आएगा बट कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो हाँ, ए ए भूल गई तुम, ए था ना यहाँ पे। हाँ दिव्या बोलो। इन पार्ट में हाउ डू आई बिगिन? मतलब मैंने किया बट वो बहुत लंबा जा रहा है। विच पार्ट इज सेइंग? इन पार्ट। एन, एन पार्ट में you rationalize, it'll become very simple. If you rationalize, it is extremely simple. Y is equal to cos x over 1 minus sin x. If I directly differentiate, answer उससे भी आएगा, but I need to apply division rule. If you want to avoid that, so you can use this, rationalizing the denominator. So this is cos x into 1 plus sin x. Denominator हो जाएगा 1 minus sin square x. साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव, साइन 1 - sin स्क्वायर हो जाएगा cos स्क्वायर x,
और फिर उसको अलग अलग डिवाइड कर दो, नेक्स्ट स्टेप है फिर डिफरेंशिएट कर दो। कॉस कट गया तो 1/cos sin/cos, अब उसके बाद डिफरेंशिएट कर दो, sec x plus tan x। हाँ, गुड। So now dy by dx will be अभी कहाँ, अभी तो बहुत टाइम है, sec x tan x plus sec square x। e to the power x, e to the power x की है, e to power x की x। हाँ, हाँ तो e to the power x का डेरिवेटिव वही तो आता है, सेम आता है। You can no, you don't write that, you differentiate it and after differentiation same function वापस आ जाएगा। हाँ, सेम आ जाएगा वापस। तीन कर लो ना, डैश डॉट डॉट लगा दो फिर। तो इसके बाकी पार्ट तुम घर पे कर लेना, ठीक है। एंडिंग द क्लास Thank दिव्शा, और कल क्लास नहीं है फिजिक्स का, ठीक है। ओके, Thank you. बाय। Bye, sir.